Hello everyone, this is Farhan guys. Hope you are doing good. Let's start O-level paper 1 multiple choice question. May-June 2022, variance 12. The duration of this paper is 1 hour. Let's see what we have in this. Okay. The student investigate. Oh my goodness, let me fix my. Okay. A student investigate the rate of reaction. So we need to find out the rate of reaction, guys. Rate of reaction, guys. Rate of reaction. Okay. All right. Between calcium carbonate and hydrochloric acid. The volume of gas in the syringe is recorded after 1 minute. So obviously, if you need to record 1 minute, इसको record उसी वक्त किया जा सकता है जब आपके पास stopwatch हो. So to record the time, we need a stopwatch. Record the time, we need stopwatch. Okay. The experiment is repeated using different concentration of hydrochloric acid. One more thing, concentration of hydrochloric acid है, तो obviously solution form में होगा. Solution needs to be measured through measuring cylinder. Okay. All right. Which additional piece of apparatus are essential for the investigation? So I believe we need to measure the time. So we need a stop clock. We need to measure the solution of different concentration of hydrochloric acid, and for that we need measuring cylinders. So second is right. And obviously experiment start करने से पहले calcium carbonate और hydrochloric acid का mass before experiment and after experiment भी मुझे measure करना होगा, and for that I will use electronic balance. So I think first is also correct. So I think 1, 2, and 3, all of them are correct, and therefore D is going to be the right answer. Okay. Which statement is correct? A mixture of liquids with boiling points which differ by 35 degrees Celsius can be separated by distillation. It might be the right answer because distillation is a process जिसमें हम liquids को separate करते हैं if they have a different boiling points, right? और वो कह रहे हैं differ by 35 degrees Celsius, meaning कि boiling point का difference काफी ज़्यादा है. So this looks good, I believe. Let's talk about other stuff. Locating agent are needed to identify the colors present in ink. Ink is colorful, so we don't need locating agent for that, which means B is incorrect. The desalination of seawater to produce pure water is achieved by fractional distillation. Desalination of seawater never achieved through fractional distillation. This is absolutely incorrect. The RF value of a dye in a chromatogram can be calculated using the formula. RF का होता है distance traveled by solute over distance traveled by solvent. तो ये रिवर्स कर दिया एग्जामिनर ने, इसको नीचे आना चाहिए और इसको ऊपर जाना चाहिए. इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें गलत दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत. And obviously A is going to be the correct option for this. Okay. Question number 3. Some reactions of an aqueous solution of compound X are given. Okay. When few drops of aqueous sodium hydroxide are added, a white precipitate is formed. That shows कि ये जो आपके पास white precipitates हैं, ये calcium ion के भी हो सकते हैं, zinc ions के भी हो सकते हैं, aluminum ions के भी हो सकते हैं. इसका मतलब compound X contain these 3 cations. All right. Be careful. Okay. बहुत careful होकर पढ़ना है statement. Next is when dilute nitric acid is added, a mixture is formed, a gas is formed. So acid add करने पर अगर gas release हो रही है, इसका मतलब it must be an acidic gas. All right. So let's talk about let's read further. The gas
decolorizes acidified potassium magnate 7. So आप जानते हैं कि acidified potassium magnate 7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर वो गैस इसको डीक्लोराइज कर रही है तो ऑब्वियसली दैट गैस मस्ट बी द रिड्यूसिंग एजेंट। और कौन सी गैस रिड्यूसिंग एजेंट होती है? जो एसिड से मिलती है रिएक्शन करने पे, एंड दैट मस्ट बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों कह रहा हूँ। आपके पास सोडियम सल्फाइड है, अगर आप उसको एसिड से रिएक्शन कराएं, लेट्स सपोज सोडियम नाइट्रेट से, सॉरी नाइट्रिक एसिड से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट में, वाटर में और सल्फर डाइऑक्साइड में। ऑलराइट, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस सेकंड बुलेट पॉइंट, कि ये जो गैस है ये बेसिकली आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है और ये KMnO4 को रिड्यूस कर रही है। कैन dechlorize KMnO4. Okay. All right. उसके बाद है आपके पास इसका मतलब ये नो, इसका मतलब ये हुआ कि इस टेस्ट से आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास सल्फाइड आयंस अवेलेबल हैं, जब भी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। सो this test shows sulfide ions is present, जब भी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें मिली है। ठीक है, नेक्स्ट, dilute nitric acid and aqueous barium nitrate are added, no visible reaction occurs, that shows no sulfate ions, क्योंकि अगर सल्फेट आयंस होते तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते, तो नो सल्फेट आयंस प्रेजेंट। तो एक बात तय हो गई कि सल्फेट नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी बात, सिर्फ कैल्शियम सल्फाइड नहीं होगा क्योंकि आपके पास इन तीनों के प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। ऑप्शन सी भी गलत इसलिए क्योंकि 3 हैं आपके पास ऑप्शंस, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, इन तीनों के सल्फाइड्स होंगे जब भी इस कंपाउंड एक्स के अंदर ये तीनों मौजूद हैं। और इसलिए जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया तो इन तीनों की प्रेजेंस की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए। जब आपने इस कंपाउंड एक्स के अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई जिसने डीक्लोराइज कर दिया एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 को, which is why D is going to be the right answer. That's a technical stuff, lot of analytical stuff. Which set of changes to conditions increases the volume of gas? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस को हमने 2 तरह से पढ़ा है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस हमने बॉयल्स लॉ के थ्रू पढ़ा है जिसमें वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और दूसरा हमने पढ़ा है चार्ल्स लॉ जिसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस केस में अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस को इंक्रीज करना चाहता हूं तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा, pressure need decreases, so volume increases in this case. Okay, so pressure decrease कहाँ लिखा हुआ है? pressure decrease यहाँ भी है। okay, इस केस के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा because both of them are directly proportional to each other. तो टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, and therefore A is going to be the right answer. Okay, so this is your Boyle's law, this is your Charles law. हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं क्लास में। इसको हमने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहा था, इसको हमने टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहा था। ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। ओके, next is ethyl amine gas and hydrogen chloride gas react together to form white solid. ethyl amine hydrogen chloride is basically the salt जो के फॉर्म होता है इन दोनों के रिएक्शन करने पे। at which position in the tube would a ring of solid white ethylamine hydrogen chloride forms? Okay, सबसे पहली बात कि ये भी गैस है, तो let's find out the MR of this gas. So MR of C2H5NH2, C2H5 is 29 plus 16 is 29 plus 16 is going to be 45. Okay,
और ये भी है आपके पास, और इसका भी MR आपके पास होगा 36.5। ओके, सो ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, इसका मास कम है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, और इसको कर देते हैं हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन, हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो जिसका हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ऑब्वियसली गाइस उसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फास्टर होगी। ठीक है, और जिसमें स्लो रेट होगा उसमें पार्टिकल मूवमेंट स्लोअर होगी। तो जितनी देर में ये मूव करके इस ए तक आएगा इतनी देर में हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से ट्रेवल कर लेगा, विच मीन्स ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज ये स्लोली डिफ्यूज होगा, इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो होगी, इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट क्विक होगी। ये बहुत क्विकली ए तक पहुंचेगा, ये बहुत स्लोली ए तक पहुंचेगा। आई रिपीट, ये क्विकली ए तक पहुंचेगा, ये स्लोली ए तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो व्हाइट डिपॉजिट है सॉल्ट का वो ए के ऊपर अपीयर होगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, एंड आई थिंक हमने ये वेरिएंस 11 में भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है आपको। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। Element X can be represented by symbol this, which is statement about an atom of element X are correct। अगर ये element X है तो इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, and 14 minus 6 becomes 8 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन का मास होता है 14, और आइसोटोप के अंदर अगर वो मास होता आइसोटोप होता है तो उसका मास डिफरेंट होता है, इसका मतलब मास डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन नहीं है। लेकिन कार्बन आप जानते हैं उसके 3 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, वी डिड दिस इन क्लास, और एक होता है कार्बन 14। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, इसका मास नंबर 14, इसका भी मास नंबर 14, इसका मतलब ये आइसोटोप ऑफ कार्बन। ओके, तो फर्स्ट एंड 3 इज करेक्ट, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 7, 2 isotopes of chlorine are this and this, using these isotopes of carbon and hydrogen how many different relative molecular masses are possible for the compound with molecular formula this। That's what we did in variance 11, और हमने काफी डिटेल से वहां पर करवाया है आपको। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, हम डायरेक्ट ये कर लेते हैं कि जनाब हमारे पास 3 क्लोरीन एटम है, तो हमने ये 3 क्लोरीन एटम की पहली पॉसिबिलिटी लिखी, और 3 क्लोरीन एटम की ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी हमारे पास। सही है, 3 क्लोरीन एटम की ये थर्ड पॉसिबिलिटी होगी हमारी। मैं हाइड्रोजन शेयर नहीं कर रहा हूँ, अंडरस्टूड वहां पर हैं। ओके, तो जब मैं MR डिटरमिन करूंगा हाइड्रोजन और कार्बन को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि उनके मासेस यहाँ पर गिवन है मुझे। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपको, काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया हुआ मैंने वेरिएंस 11 में। यू कैन सी वेरिएंस 11 इन दिस रिगार्ड। ओके, बट हम क्विकली जरा कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों क्लोरीन 35 हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि तीनों की तीनों क्लोरीन 37 हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों क्लोरीन 35 हो और ये वाला जो क्लोरीन है वो 37 हो, और लास्ट पॉसिबिलिटी कि ये दोनों क्लोरीन 37 हो और ये क्लोरीन 35 हो। तो वी हैव टोटल हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास 4 डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास आएंगे, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, व्हिच रो इज करेक्ट? सबसे पहले बात कर रहे हैं एलिमेंट की, फिर कंपाउंड की, फिर मिक्सचर की। सो आप जानते हैं कि कॉपर जो है वो एक प्योर मेटल है, तो ये मिक्सचर नहीं होगा, बट एयर इज अ मिक्सचर।
तो obviously A is not going to be the correct answer. Air is a mixture, which is right. Brass is a mixture of metal, तो ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन. यहाँ पर एयर मिक्सचर है, यहाँ पर ब्रास भी मिक्सचर है, तो या तो बी आंसर होना चाहिए या सी. लेट्स सी क्या और क्या हो सकता है. आयरन मिक्सचर नहीं है, इसका मतलब डी भी गलत. तो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड सी. एलिमेंट से रिलेटेड बात करते हैं. ग्रेफाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एलिमेंट. आयरन इज एन एलिमेंट इटसेल्फ, तो ये भी ठीक है आपका. कंपाउंड में सैंड इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड. आई थिंक बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. चलो क्वेश्चन ऑप्शन डी को भी देख लो. आयरन एलिमेंट है बट वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है, वाटर तो कंपाउंड है. सही है, तो ये इसलिए सी भी गलत हो जाएगा. वाटर इज अ कंपाउंड, आयरन इज एन एलिमेंट, so that's right. ठीक है, so B is going to be the correct answer. Question number 9, which statement about ionic compound is correct? Ionic compounds आप जानते हैं solid होते हैं at room temperature and pressure, and all of them are solid, which is why A is going to be the correct answer. That's a very very easy question. बाकी भी पढ़ लेते हैं. All conducts electricity at room temperature. At room temperature, if they are solid, so they don't have free mobile ions, and so they cannot conduct electricity. So B is incorrect. They are all soluble in water. They are all, not all ionic compounds are soluble in water. For instance, aluminum oxide is ionic compound, but it is insoluble in water. So ये जो all कहा है examiner ने, ये possible नहीं है, क्योंकि aluminum oxide insoluble होता है, aluminum oxide is an ionic compound. तो आपका B भी गलत, आपका C भी गलत. Next, they all have strong intermolecular forces. Guys, intermolecular forces exist in covalent molecules, covalent compounds, not in ionic compounds. Ionic compounds exhibits electrostatic attraction, not intermolecular forces. Okay, that's the difference. Electrostatic attraction means attraction between positive and negative ions, attraction between cation and anion. So it is also incorrect. Question number 10. Oh. A molecule of tetrafluorosilane is shown in the dot and cross diagram. Only the outer shell electrons are shown. Okay, outer shell electrons show कर रहे हैं आपको वो, ठीक है. Which statement is correct? Each molecule of SiF4 has exactly 16 pairs of electrons. 16 pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये तो वैलेंस शेल के है ना. जो इनर शेल के पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो हमने काउंट ही नहीं किए, वो अलग होंगे. ये जितनी डायग्राम बनी है सब वैलेंस शेल की है, एंड ऑब्वियसली इनर शेल भी होगा, के शेल भी तो होगा ना, उसके भी तो पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो हमने काउंट ही नहीं किए. तो इसका मतलब 16 से ज्यादा होंगे. 16 तो वैलेंस शेल के, इनर शेल के मिलाएंगे तो 16 से ज्यादा हो जाएंगे. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. मैं दोबारा बता देता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये 12 पेयर्स हो गए. 13, 14, 15, 16. तो 16 पेयर्स सिर्फ और सिर्फ आपके आउटर शेल के अंदर है. जो इनर शेल है उसकी भी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो हमने काउंट ही नहीं किए, तो वो 16 से ज्यादा हो जाएंगे, which is why A is incorrect. Okay. In SiF4, both the silicon and fluorine have the same electronic configuration as neon. Not really, because neon का atomic number होता है 10. इसका मतलब neon has 10 electrons. आप नोट करें, फ्लोरीन में यहाँ पर 8 हैं, इस फ्लोरीन में भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, सिलिकॉन में भी 8 हैं, तो 10 तो नहीं है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. फिर उसके बाद है molten SiO4 will conduct electricity. By the way, silicon tetrachloride is a covalent molecule because it exhibits sharing of electron, and covalent molecule जो है वो molten state में exist नहीं करते, ionic compound molten state में exist करते हैं, which means C is also incorrect, and therefore D is going to be the final option. और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये covalent molecule है क्योंकि sharing of electron कर रहा है, तो covalent molecule में weak intermolecular forces होती हैं, weak van der Waals forces होती हैं, और जहां पर भी weak van der Waals forces होती हैं उनको overcome करने के लिए we need less amount of energy, which is why it has low melting point. So D is going to be the right option. 11. The table describe two properties associated with metals. Two properties की बात कर रहा है, metal से related है. वो कह रहे हैं which row shows correct reason for the stated property. Malleable तो होते हैं,
ये बात सही है, लेकिन मेलेबल किस वजह से होते हैं? द लेयर्स ऑफ मेटल एनाइंस। नहीं नहीं, मेटल एनाइंस तो होते ही नहीं है, मेटल हमेशा कैटाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं बी में मेलेबल तो होते हैं, द लेयर्स ऑफ मेटल कैटाइंस व्हिच इज राइट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ये बिल्कुल सही बात है, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर श्योर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑल मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल बिकॉज द लेयर्स ऑफ एटम कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। तो जो द लेयर्स ऑफ एटम की टर्म एग्जामिनर्स को कह रहा है द लेयर ऑफ मेटल कैटाइंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ यू से मेटल कैटाइन की लेयर और इफ यू से मेटल एटम की लेयर, it doesn't make any difference. Now the next is aqueous silver nitrate reacts with aqueous potassium dichromate 6, potassium chromate 6, sorry, to give a yellow PPT. Write the ionic equation for this reaction. Okay, okay. अच्छा, पहली तो बात ये कि यहां से इसको डिसोसिएट करो, ये हो जाएगा सिल्वर आइंस एंड नाइट्रेट आइंस, और यहां से इसको डिसोसिएट करो, ये हो जाएगा पोटेशियम आइंस एंड CrO4 2 नेगेटिव आइंस। ओके, ठीक है जी। ऑब्वियसली ये स्पेक्टेटर आइंस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। इन दोनों को उठाकर यहाँ लिखिए, दिस इज सिल्वर आइन एंड दिस इज CrO4 2 माइनस आइंस। सो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास Ag2CrO4। तो आप ये नोट करें, ये कहाँ पर लिखा हुआ है। इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी गाइस, सिल्वर आइंस प्लस CrO4 2 नेगेटिव आइंस, एरो फॉर्मूला बनेगा Ag2CrO4। ये आयन है तो मीडियम एक्वस, ये आयन है तो मीडियम एक्वस, एंड ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट्स कह रहा है एग्जामिनर, तो प्रेसिपिटेट जब बनते हैं तो वो सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड होगा। नाउ यू नीड टू सी कि ये इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है। ये इक्वेशन, अच्छा बैलेंस भी करना है, यहाँ पर कितने मोल्स हैं 2, तो यहाँ 2 लगाओ। अब चेक करो कि ये इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है। इक्वेशन सी में लिखी हुई है एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, याद रखना कि ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये स्पेक्टेटर आइंस थे, कैंसिल हो गए थे, तो मैंने डायरेक्टली इन दोनों को यूज कर लिया, शॉर्टकट लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, what is the relative formula mass of anhydrous sodium carbonate? Sodium carbonate anhydrous, so anhydrous का मतलब है without water। सही है। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, तो सोडियम कार्बोनेट को विदाउट वाटर कैसे लिखोगे आप, Na2CO3, और इसमें सोडियम का AR होता है 23 इंटू 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 टाइम्स 3, so it's going to be 106 and therefore C is going to be the right answer. That's an easy question. फिर वो कह रहे हैं which contain the greatest mass of solute, okay, and this is a solute। ये आपकी कंसंट्रेशन, ये वॉल्यूम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे, जो मोल्स आएंगे उसको NaOH के MR से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा। यही अप्रोच सबके लिए रखते हैं, तो चलें सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मोल्स आ गए मेरे पास। इन मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा NaOH के MR से which is 40। so let's solve this, that's a shortcut technique guys। 100 divided by 1000 into 40 is going to be 4 ग्राम। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सल्फ्यूरिक एसिड के MR से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। तो ये भी शॉर्टकट है, डायरेक्ट MCQs में ये यूज करना होता है हमें। into 100 डिवाइडेड बाय 1000 into सल्फ्यूरिक एसिड का MR होता है 98, मैंने आपको क्लास में सिखाया है, आपको आना चाहिए। 500 into 0.05 divided by 1000 into 98 is going to be 2.45 ग्राम। सही है। अच्छा जी, 1 DM क्यूब में इतने मोल्स हैं, उसने भी 1 ही दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।
ये पर डीएम क्यूब इस डीएम क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 मोल रह जाएंगे हमारे पास, और 1 मोल KOH का एमआर निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये है पर डीएम क्यूब और ये है 1 डीएम क्यूब। तो पर डीएम क्यूब एंड 1 डीएम क्यूब इज द सेम थिंग, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यू हैव लेफ्ट ओनली 0.1 मोल। 0.1 मोल को आप मल्टीप्लाई करोगे एमआर ऑफ KOH से, तो यू विल गेट मास। तो KOH होता है 39 प्लस 17 इज गोइंग टू बी 56। तो मैं 0.1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 56 से, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 0.1 into 56 is going to be 5.6 ग्राम। सबसे ज्यादा तो यही मास आया है। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 डीएम क्यूब में इतने मोल्स हैं, तो 2 डीएम क्यूब में कितने मोल्स होंगे? सही है। तो 1 डीएम क्यूब में आपके पास कितने मोल्स हैं? 0.01 मोल। तो भाई 2 डीएम क्यूब में कितने मोल्स होंगे? तो ये हो जाएंगे 0.02 मोल्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो HCl के एमआर से, विच इज 36.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.02 into 36.5 is going to be 0.73 ग्राम। बेटा जैसे मैंने ये HCl की वर्किंग करके दी है ना, एग्जैक्टली तमाम ऑप्शंस की इसी तरह से वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट लगाया, ठीक है, बिकॉज MCQ में यू नीड टू अप्लाई एंड यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई द शॉर्टकट। ओके, आप बोलते हैं तो मैं ये NaOH को सॉल्व कर देता हूँ एक मतलब और थोड़ा डिटेल से इस पैटर्न से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये शॉर्टकट कैसे लगाया है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। भाई 1 डीएम क्यूब का मतलब होता है 1000 सीएम क्यूब। तो 1000 सीएम क्यूब में आपके पास 1.00 मोल्स हैं, आपके पास 100 सीएम क्यूब है, तो बताइए मोल्स कितने होंगे? तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 0.1 मोल, और 0.1 मोल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, 40, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 ग्राम। सही है, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी, ठीक है, बट ऑब्वियसली सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज सबसे ज्यादा मास उसी के अंदर आया। क्वेश्चन 15 रिपीटेड है, हमने वेरिएंस 11 में भी किया है। हाउ मेनी टन्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 27 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम? ओके, राइट आंसर इज बी। कैसे भी है जरा देखिए, ये है आपके पास एल्यूमिनियम, इसको रिएक्शन कर लीजिए आप ऑक्सीजन के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ठीक है। ये 4 मोल है, ये 2 मोल है। अगर डायरेक्ट शॉर्टकट लगा देते हैं, एल्यूमिनियम का मास है 27, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं, ये शॉर्टकट लगा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 27 टाइम्स 4 is going to be 108, और Al2O3 होता है 102 आई थिंक। 27 टाइम्स 2 प्लस 16 टाइम्स 3 is going to be 102। उसके 2 मोल्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 204। अगर 27 है तो बताइए ये कितना होगा? तो भाई सीधी सी बात है, 204 को मल्टीप्लाई करो 27 से और डिवाइड करो 108 से। मैंने इससे पहले डिटेल मेथड दिया हुआ वेरिएंस 11 में, ये शॉर्टकट दे दिया, आपको दोनों आने चाहिए। 27 से मल्टीप्लाई करें और 108 से डिवाइड करें, यू विल गेट 51 ग्राम, तो 51 टन्स, ठीक है, which is why B is going to be the right answer. Next, dilute sulfuric acid is electrolyzed, hydrogen gas and oxygen gas is produced. आप जानते हैं hydrogen gas is produced at cathode and oxygen gas is produced at anode. Okay, which row correctly describes what happens? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड, hydrogen gas is produced at cathode, concentration of acid always increases. Why? जाहिर सी बात है, आप नोट कीजिए और फोकस होइएगा। हाँ, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोक्साइड आइंस एंड सल्फेट आइंस। ओके, याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये इस एसिड से भी मिल रहे होंगे और वाटर के थ्रू भी मिल रहे होंगे।
ऑलराइट, अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आइंस चले गए इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, हाइड्रोक्साइड आइंस डिस्चार्ज हो गए इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनोड। सो सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आइंस रह जाएंगे और कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आइंस रह जाएंगे जो कि वाटर से मिल रहे होंगे। Now these hydrogen ions and sulfate ions combine together to give sulfuric acid, which makes the electrolyte more concentrated. I believe we have done this analytical part in electrolysis, in specifically in dilute sulfuric acid case. You can check them in notes, right? So B is going to be the right answer. Next is aluminum can be extracted by the electrolysis of aluminum oxide dissolved in molten cryolite, which reaction takes place during the electrolysis. अच्छा जी, हम आपको बता देते हैं कि भाई कैथोड पे क्या होता है। एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, सो एल्यूमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम मेटल में। अब ये इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है? डी में लिखी हुई है, इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम एनोड की इक्वेशन भी देख लें। जो हमने एनोड की इक्वेशन लिखवाई है उसमें ये है 2O2 नेगेटिव लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीजन गैस। आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं 2O2 नेगेटिव, ये यहाँ पर +4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप इस +4 को इस तरह से लिख दें -4 इलेक्ट्रॉन, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों बातें सेम है, लिखने का स्टाइल है बस। सो ऑब्वियसली ये यहाँ पर ऑप्शन गिवन है एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, which reaction is exothermic? Combustion of methane is exothermic. All combustion reactions are exothermic. Cracking of hydrocarbon is thermal decomposition, endothermic. Decomposing of water into hydrogen and oxygen, bond breaking in electrolysis is endothermic. Photosynthesis is endothermic. So ये भी endothermic, ये भी endothermic, ये भी endothermic, which is why 18 का answer A होगा। 19, what is the correct balanced equation in enthalpy change for the complete combustion of butanol? Butanol है मेरे पास, ब्यूटानॉल का फॉर्मूला एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ C4H9OH। मैं इसकी कंप्लीट कंबस्शन करना चाहता हूँ, इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन एटम है तो मैंने यहाँ पर 4 रख दिया। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए आपके पास 10, तो मैंने यहाँ पर 5 कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन हियर, 4 × 2 8, 8 + 5 कितने हो जाएंगे 13, 13 में से 6 यहाँ लगा देता हूं मैं, तो ये हो गया 12, 12 + 1 13। ओके, और आप जानते हैं कि कंबस्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर है? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर है, तो या तो आंसर ए है या सी। एक बात कंफर्म हो गई कि बी और डी इनकरेक्ट है। अब मसला ये है कि ये इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है ये भी देखना है आपने। ठीक है, तो ये इक्वेशन सी के अंदर लिखी हुई है, सही है जनाब? तो राइट आंसर है सी। यहाँ पर ऑक्सीजन गलत है इसलिए ए भी गलत, ऑक्सीजन के 6 मोल्स होंगे इसलिए गलत। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ब्रोमेट। ब्रोमेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड का फॉर्मूला है, एंड हाइड्रोजन आयंस, ये रहा हाइड्रोजन आयंस, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन शोन some apparatus for measuring how the rate of this reaction varies over time is suggested। भैया सबसे पहली बात rate of reaction मालूम करना है, over time is suggested। ठीक है, so वो कह रहे हैं which apparatus is suitable to measure the rate of this reaction। तो पहली बात तो ये gas range is incorrect, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्वस मीडियम और लिक्विड स्टेट के अंदर है, कोई भी गैसियस स्टेट में नहीं है, इसलिए ये गलत। ठीक है, दूसरी बात आई बिलीव इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये आयंस हैं, फॉरन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा, यू वोंट बी एबल टू मेजर द मास बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ओके, क्योंकि सब एक्वस मीडियम के अंदर है। आई थिंक पीएच मीटर इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस हैं, तो जब हाइड्रोजन आयंस होंगे तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और जाहिर सी बात है जब ये हाइड्रोजन आयंस रिएक्शन करना शुरू करेंगे तो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो उसकी चेंज आएगा पीएच के अंदर, concentration of hydrogen ion changes।
पीएच वैल्यू चेंजेस, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, पीएच वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक हो सकता है। तो राइट आंसर इज डी। 21 25 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid reacts with 10 gram of solid to produce a gas. Okay. कौन सा सॉलिड होगा ये जो गैस प्रोड्यूस कर दे एसिड से रिएक्शन करने में? ऑन टॉप ऑफ दैट सॉलिड इज इन एक्सेस। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। The graph labeled first experiment shows that the volume of gas produced over time. Okay, graph P and Q shows the volume of gas produced under different conditions. एसिड से रिएक्शन करने पे ओके सॉलिड का रिएक्शन हो रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूँ मैंने कौन कौन से रिएक्शन करा। एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। एक तो रिएक्शन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ये करवाया है, इसमें कोई गैस रिलीज नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो ऑप्शन ये जो मेरी सोच है कॉपर ऑक्साइड को यूज करने की ये गलत है। दूसरा है मेरे पास सॉलिड 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 सोडियम कार्बोनेट यूज कर लेते हैं। अगर मैं इसको HCl से रिएक्शन करवाऊं ये सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है जिसका वॉल्यूम मैंने कलेक्ट करना है। सही है जी, मेजर करना है डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। तो इसका मतलब कोई मेटल कार्बोनेट है जो कि HCl से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है व्हिच वी नीड टू मेजर। तो ऑब्वियसली अगर मैं एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन करवा रहा हूं तो उसमें हम कैटलिस्ट तो यूज नहीं करते। ऑलराइट, हम उसमें कैटलिस्ट यूज नहीं करते। इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। वी कैन नॉट यूज कैटलिस्ट इन सच रिएक्शंस। अच्छा एक मिनट एक और भी रिएक्शन हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करवा लूं मैं इस HCl को और ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में और हाइड्रोजन गैस में। तो यहाँ से भी गैस का कलेक्शन तो हो रहा है। तो गैस का कलेक्शन ये भी हो सकता है, गैस ये भी हो सकती है क्योंकि हमें बताया नहीं है कि कौन सा सॉलिड है। तो इट माइट बी कार्बोनेट, इट माइट बी एनी मेटल। ऑलराइट, बट ये तय है कि ये दोनों के दोनों एक्सेस में होंगे। जो भी होगा वो एक्सेस में होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, गैस यहाँ भी कलेक्ट हो रही है, गैस यहाँ भी कलेक्ट हो रही है और दोनों इक्वेशंस के अंदर, दोनों रिएक्शंस के अंदर हम कैटलिस्ट कभी भी यूज नहीं करते। इसलिए ए इज इनकरेक्ट। बी की बात करते हैं। P uses 25 cm cube more concentrated acid and Q uses smaller pieces of solid. अच्छा मसला ये है कि क्यों, क्योंकि एक्सेस अमाउंट के अंदर है तो उसका पीस स्मॉलर होगा या बिगर, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, व्हिच इज व्हाई ये भी गलत। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज P uses higher temperature. ओके, हायर टेम्परेचर होता है तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन हायर होता है, हाई रेट होगा एंड ऑब्वियसली स्टीपर कर्व होगा क्योंकि रेट ज्यादा होता है। तो ये बात पी में तो बैलेंस हो गई है, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्टीपर कर्व है वो ज्यादा है। ये देखो सही है, ये तो ज्यादा हो गया। सो ये बात तो तय हो गई है। और उसके बाद वो कह रहे हैं क्यू यूजेस 25 cm क्यूब मोर डाइल्यूट सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जब सोल्यूशन को आप डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी। डाइल्यूशन, dilute solution have lower concentration, have lower concentration, so less steeper curve होगा and obviously slow rate को represent करेगा वो। ओके, सो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ये देखो
सही है। ऑलराइट, तो आई थिंक बी सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। P uses a smaller piece of solid and Q uses larger piece of solid। तो solid तो वैसे ही excess amount के अंदर उसका smaller करो या bigger, it has nothing to do with that। जो limiting reactant होता है reaction से control होता है। ओके, so yeah, ये भी incorrect है। Question 22 repeated question है, हमने variance 11 में किया है। Nitrogen dioxide is a dark brown gas that decomposes as shown in the equation। The diagram shows a glass flask containing mixture of three gases। The mixture is pale brown। More oxygen is forced into the flask। Which color changes in the scene in the mixture? तो मैंने कहा था कि when you introduce oxygen into the flask, obviously amount of oxygen increase होगा। This favors the equilibrium towards left hand side, so you will get more dark brown। So right answer is going to be A। What is an observation of an oxidation process? Blue copper sulfate crystals turning to white powder when heated। Oh भाई, it is not redox for sure। Why? क्योंकि आप hydrated crystals of copper to sulfate को heat करके water of crystallization remove करके उसको आप anhydrous में convert कर रहे हो। So it is not redox। Okay, copper being deposited on the cathode during electrolysis। During electrolysis, if copper is produced at cathode, तो आप याद at cathode reduction occurs, not oxidation। Okay, so ये भी गलत हो गया। Okay, next is green gas being produced at anode when sodium chloride is electrolyzed। So at anode oxidation occur। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो क्लोराइड आइंस होंगे वो ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बना रहे होंगे, और ये क्लोरीन गैस आपको नजर आएगी जिसका कलर ग्रीन होता है। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लें, व्हाइट precipitates forming when aqueous silver ions react with aqueous chloride ions। So when silver ions and chloride ions combine together to give white precipitates of silver chloride, it is not a redox reaction। Not a redox reaction, in fact it is a precipitation reaction। Okay, तो ये भी गलत। Question 24, an excess of aqueous iodide ions is added to acidified aqueous potassium magnate 7, which row is correct। पहली बात iodide ions है, दूसरी बात aqueous potassium magnate 7 है, दूसरी बात iodide ions आपके पास reducing agent होते हैं, और ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आपको मैंने बताया कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद, तो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडाइड आयंस जो हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे। तो ये ठीक है, ये ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। ऑलराइट, अब आप जानते हैं कि आयोडाइड आयन जो है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बनाएगा तो उसका मीडियम एक्वस होगा। जब मीडियम एक्वस होगा तो उसका कलर ब्राउन होगा। तो ब्राउन यहाँ भी है, ब्राउन यहाँ भी है, तो राइट आंसर इज बी, 24B। ओके, 25, when ammonia gas is dissolved in water reversible reaction takes place। which statement are correct? ammonia is an alkali, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, because it produces hydroxide ions in aqueous solution, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको लिखा है कि all alkalis produces hydroxide ions in aqueous solution। उसके बाद वो कह रहे हैं the pH of this solution is 7। since it is an alkali, तो तमाम alkalis की जो pH है वो 7 से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, adding hydroxide ions to the mixture at equilibrium produces more ammonia। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं हाइड्रो ऑक्साइड आयंस मिक्सचर में ऐड करूं तो ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसका कंटेंट बढ़ा दूं, होल्ड, increases the amount
of hydroxide ions favors equilibrium towards left hand side, more ammonia is produced. More ammonia is produced. हाँ, तो फर्स्ट ठीक है और थर्ड ठीक है, तो इसका मतलब B is going to be the right answer, 25B. Next, 3 dilute solution of acid each with a concentration of this. इसका मतलब सारे dilute acids की concentration same है, are reacted separately with an excess of calcium carbonate until there is no further reaction. The same volume of acid is used each time. Carbon dioxide produced is collected and its volume measured. All measurements are room temperature and pressure. What are the possible identities of the acid? Okay, पहली तो चीज कंफर्म हो गई मुझे, ये एसिड 3 है, इट मस्ट बी वीक एसिड क्योंकि उसकी pH 3 है या 3 से ज्यादा हो तो वो वीक एसिड होता है. 0, 1, 2 स्ट्रॉन्ग, 3, 4, 5, 6 वीक. सही है, तो ये वीक एसिड होगा. एंड ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. होल्ड होगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दूं. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी pH 2 है तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. सही है. इसका वॉल्यूम 20, इसका वॉल्यूम 20, सेम वॉल्यूम है, इसका मतलब कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम. सही है, लेकिन जाहिर सी बात है 1 हाइड्रोजन आयन है तो इट विल टर्न टू हाइड्रोजन गैस. लेकिन ये आपको क्या दे रहा है, 40 cm³ ऑफ गैस. तो अगर ये 40 cm³ ऑफ गैस दे रहा है, इसका मतलब कंटेन ट्वाइस वॉल्यूम दे रहा है. तो अगर ये 20 cm³ दोनों दे रहे हैं एक हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करने पे, और ये 40 दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन आयंस होंगे. कंटेन 2 हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस मीडियम because it is giving twice the volume. तो ये 2 हाइड्रोजन आयंस 2 moles of H2 देंगे. ठीक है. तो एसिड 3 इज वीक. तो वीक एसिड जो है वो यहाँ है और यहाँ है. तो एक बात तो तय हो गई कि सी भी गलत है और डी भी गलत है. सही है जी. अब इशू ये है कि एसिड 2 का वॉल्यूम ट्वाइस है, इसका मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन आयंस होंगे. तो 2 हाइड्रोजन आयंस आपके पास एसिड 2 के अंदर हैं, वो यहाँ है और यहाँ है. और एसिड 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो 20 cm³ दे रहा है, तो वो ये होगा और ये भी होगा. तो राइट आंसर ऑब्वियसली ए, और कोई ऑप्शन बनता नहीं है इसमें. ठीक है. एसिड 2 ट्वाइस वॉल्यूम दे रहा है बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोजन आयंस. ओके, ठीक है जनाब. सो हम कुछ इस तरह से कह देते हैं कि जनाब हम कैल्शियम कार्बोनेट है ना हमारा, इसको हम HCl से रिएक्शन करवा देते हैं. ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. ठीक. इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाइए, सॉरी, it will turn to calcium sulfate, water and carbon dioxide. Then कैल्शियम कार्बोनेट को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाइए, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड. सही है. तो आप देख रहे हैं
In order to produce 1 mole of carbon dioxide, we need 2 moles of HCl. इसलिए वॉल्यूम कम आ रहा है, हाफ आ रहा है वॉल्यूम. इसमें 1 मोल है, इसलिए इसका वॉल्यूम ट्वाइस आ रहा है. ठीक है. So A is going to be the right answer. Question number 27. The steps for the preparation of pure sample of sodium nitrate is listed. That's a very, very important statement. Pure sample sodium nitrate. तो भाई एक soluble salt है. And obviously ये जो soluble salt होगा, ये titration के through prepare होगा. यही सिखाया मैंने क्लास में, लिखा हुआ है पूरा प्रोसीजर. ठीक है. ओके, उसने पूरा दिया हुआ भी है, टाइट्रेट वगैरह उसने स्टेप्स दे दिए. वो कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेप इज करेक्ट. सबसे पहली बात, मैं ऑर्डर का स्टेप्स लेता हूँ. सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आप पिपेट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम उसके थ्रू मेजर करेंगे और उसको कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस करेंगे. तो ये सबसे पहला स्टेप होगा मेरा. फिफ्थ तो सिर्फ डी में ही है, तो डी इज द राइट आंसर. ये तो बहुत ही आसान है. यू शुड नो कि सबसे पहला काम क्या करते हैं. सबसे पहला काम मैंने यही एग्जैक्ट लिखवाया आपको रजिस्टर में कि आप नोन वॉल्यूम ऑफ NaOH को पिपेट आउट करेंगे और कॉनिकल फ्लास्क में लेके जाएंगे. यानी जो फिफ्थ स्टेप है वो सबसे पहले होना चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर है, विच इज वाई डी इज द राइट आंसर. लेकिन हम पूरा पढ़ लेते हैं. जब हम कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेस कर देंगे तो फिर उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड करेंगे. तो ये फोर्थ आ गया. इंडिकेटर ऐड करने के बाद हम इस कॉनिकल फ्लास्क को टाइट्रेट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अंटिल एन एंड पॉइंट इज रीच्ड. ये थर्ड आ गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कॉनिकल फ्लास्क को रिंस करेंगे, वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद हम इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करेंगे. लेकिन रिपीट करते वक्त हम इंडिकेटर को यूज नहीं करेंगे. इस तरह से हमें टाइट्रेशन के थ्रू सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन मिलेगा. उस सोल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यानी वाटर इवेपोरेट करेंगे. जैसे वाटर इवेपोरेट करेंगे सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा और वो कूल होकर फिर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर क्रिस्टल्स को रिमूव कर लेंगे. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. लेकिन इस क्वेश्चन से आपको एक अंदाजा हो गया कि जो आपको मेथड और प्रोसीजर लिखवाए हुए हैं और जिस ऑर्डर से वो लिखवाए हुए हैं वो ऑर्डर बहुत मैटर करेगा. सही है, क्योंकि वो रैंडम नहीं था कोई भी, हर चीज ऑर्डर से लिखवाई गई थी आपसे. A white compound is insoluble in water. अगर ये व्हाइट कंपाउंड है तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड होते हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनसॉल्युबल इन वाटर. तो आपके पास सोडियम है, कैल्शियम है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है. तो भाई दो चीजें बनेंगी. एक बनेगा आपके पास सोडियम नाइट्रेट, और एक बनेगा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट. एक बनेगा आपके पास सोडियम कार्बोनेट और एक बनेगा आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट. ये पॉसिबिलिटीज है ना. पहली तो बात ये कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. तो ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, ये प्रेसिपिटेट्स देगा. एंड ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल. तो सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल है. तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जब मिक्स होगा आपस में तो ऑब्वियसली वो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकेगा. तो सोडियम और नाइट्रेट मिलकर सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए मैं सोडियम नाइट्रेट को नहीं ले सकता हूँ. But yes, calcium carbonate combined together to give a compound which is insoluble in water, and therefore C is going to be the right answer. ठीक है. Why this is correct? ये करेक्ट है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में मैंने लिखवाया आपको ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल. ठीक है, इसलिए ये भी सॉल्युबल होगा. सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल. क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 29. The flow chart describes the preparation of ammonium sulfate. एयर से एलिमेंट 1 आएगा और वो हेबर्स प्रोसेस में इस्तेमाल होगा. एयर में नाइट्रोजन होती है, तो एलिमेंट 1 इज बेसिकली योर नाइट्रोजन और एलिमेंट 3 इज बेसिकली योर हाइड्रोजन. क्योंकि ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होंगे तो अमोनिया बनाएंगे. तो अमोनिया में हेबर्स प्रोसेस बनती है. ठीक है. एयर कंटेन ऑक्सीजन.
तो दिस इज योर ऑक्सीजन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्शन करेगा, तो जाहिर सी बात है सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होती है, आई मीन सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड, फिर फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया से रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट। तो फर्स्ट जो है वो आपका नाइट्रोजन है, सेकंड जो है वो आपका ऑक्सीजन है, थर्ड जो है वो आपका हाइड्रोजन है, और फोर्थ जो है वो आपका सल्फर है। तो राइट आंसर इज ए। ओके, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 30, which row correctly shows the possible use of sulfur dioxide and sulfuric acid? या सल्फर डाइऑक्साइड के दो यूज बताए मैंने आपको, और सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे। सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प के लिए यूज होता है, और दूसरा मैंने बताया फूड प्रिजर्वेटिव। चलिए देखते हैं दोनों में से कौन सा गिवन है, ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प एंड फूड प्रिजर्वेटिव, तो फूड प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, तो ये भी गलत। नहीं नहीं, सही है ये भी। फूड प्रिजर्वेटिव इज अ ब्लीच, मेकिंग डिटर्जेंट्स गलत, ये भी गलत। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे यूज होता है, बैटरी में यूज होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लोजिव बनाने में यानी डायनामाइट बनाने में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा लेदर की इंडस्ट्री में भी यूज होता है। सो ब्लीच बनाने के तो काम नहीं आता, बैटरी में यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। तो सी और डी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, and the only correct option is going to be an A. Okay. 31. Selenium is in group 6 and gallium is in group 3. Which prediction can be made from this information? Okay. Gallium atom has 3 more protons than selenium atom. I think we should go for the periodic table in this case. Selenium ये रहा आपके पास, ठीक है, और गैलियम ये है आपके पास। सो गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है और सिलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 है, याद रखिएगा 31 एंड 34। सो सिलेनियम का एटॉमिक नंबर आपके पास है 34, इसका मतलब इसमें 34 प्रोटॉन्स होंगे, और गैलियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 31, दैट मींस इसके पास 31 प्रोटॉन होंगे। वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गैलियम एटम हैज 3 मोर प्रोटॉन्स देन सिलेनियम एटम, भाई 3 कम है उसके पास, ज्यादा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। गैलियम इज मोर लाइकली टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, गैलियम मेटल है, मेटल कैन नॉट फॉर्म नेगेटिव आयंस, इसलिए ये भी गलत है। सेलेनियम एटम हैव फ्यूअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन गैलियम एटम्स, ओके, ये भी देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल से। Selenium is found in group 6 of the periodic table, so it has 6 valence electrons. Gallium is found in group 3 of the periodic table, so it has 3 valence electrons, right? So selenium has 6 and gallium has 3. So ओ हमें देखने की जरूरत भी नहीं थी, इसने यहाँ दिया हुआ है हमें, तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसने ग्रुप बता दिए थे हमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ होंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो सिलेनियम के पास ज्यादा है, वो कह रहा है फ्यूअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन गैलियम एटम, व्हिच इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो राइट आंसर इज डी। सिलेनियम नॉन मेटल है, गैलियम मेटल है, तो जाहिर सी बात है सिलेनियम का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। 32, which statement about some metals and their compounds is correct? Calcium reacts with cold water but not with the steam. Calcium do react with the steam, guys. गलत। Lead carbonate decomposes at higher temperature than zinc carbonate. Absolutely incorrect. Lead की reactivity zinc से कम है, तो अगर lead की reactivity zinc से कम है तो जाहिर सी बात है वो lower temperature के ऊपर decompose होगा, not high temperature, which is why B is incorrect. और ये ऑप्शन आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है
कि जो मैंने मेटल्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन लिखवाई है ना कि कौन कौन से कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर भी याद होना चाहिए। जिंक कार्बोनेट ऊपर की तरफ है, लेड कार्बोनेट उसके नीचे है, लेड कार्बोनेट नीचे है, इसका मतलब लेड की रिएक्टिविटी कम है जिंक से, इसका मतलब वो लोअर टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज होगा, उसको हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं। ठीक है, देन मैग्नीशियम, magnesium can be extracted from its oxide by heating strongly with carbon. Absolutely incorrect, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है हम उसको कभी भी कार्बन से एक्सट्रैक्ट नहीं करते। ओके, तो राइट आंसर इज डी। इन दोनों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद मेरा पॉइंट ये है आपसे, और मेरी सजेशन ये है आपसे, गाइडलाइंस ये है कि जो मेटल्स के चैप्टर है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लिखवाई है या पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से याद हो आपको। अदरवाइज आप इन इस टाइप की ऑप्शंस के अंदर स्टक हो जाओगे अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं है तो अच्छे से। प्योर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कैन रिएक्ट। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं आपको। ये HCl है, ये हो जाएगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। सही। ओह, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, हमने वेरिएंस 11 में किया था। डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो मैं इस वक्त क्वेश्चन पे शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, डिटेल मेथड मैंने वेरिएंस 11 में एक्सप्लेन किया हुआ। Which diagram shows the correct level of water after candle stops burning? अब मसला ये है कि इस बेल जार के अंदर एयर है and air contain 21% oxygen. So if oxygen uses, water level rises. यहां ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आया, नो ऑक्सीजन इन जार। ठीक है, यहां वाटर लेवल कम हो गया, लोअर लेवल ऑफ वाटर, इसका मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, विच इज नॉट पॉसिबल। 21 से भी कम है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ वाटर लेवल राइज हो गया है, सो आई थिंक सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यहाँ भी वाटर लेवल राइज हो गया है लेकिन ये गलत है, इसलिए क्योंकि ये टोटल जार का 50% शोर कर रहा है। 50% ऑफ ऑक्सीजन इन एयर शो कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। 20% होती है एंड दिस शोज 20% ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, क्योंकि ये इस पूरे जार का 20% है, ये 20% है इस पूरे जार का। सही है। 34. The addition reaction between hydrocarbon X and bromine forms only one product. Okay. पहली बात addition reaction. दूसरी बात addition reaction always takes place in alkenes. तो चेक करो एल्कीन कौन सी है। ये एल्कीन नहीं है, ये अल्कोहल है, ये भी एल्कीन नहीं है, ये एल्केन है, ये भी एल्कीन नहीं है। तो राइट आंसर इज बी बिकॉज इट इज योर इथीन। इथीन इज एन एल्कीन। इसमें डबल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एटम व्हिच इज व्हाई इट कैन रिएक्ट विद ब्रोमीन वेरी इजीली। ठीक है, और मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये इथीन है आपके पास और हम इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये H है, सब कुछ एज इट इज रखा है मैंने। इथीन का सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होगा एंड दैट विल गिव यू ओनली वन प्रोडक्ट। ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। सही है। 35. A series of reaction producing propanol from naphtha fraction of petroleum is shown. naphtha से आपको एल्कीन मिल रही है, तो naphtha is basically a long chain hydrocarbon
और उससे आपको एक एल्कीन मिला, ठीक है। अब आप नोट करो, इस एल्कीन में एक OH ऐड हुआ है और एक H ऐड हुआ है। अगर मैं इन दोनों को मिला लूं तो ये स्टीम बन जाएगा, सही। तो इस एल्कीन को हमने किससे रिएक्शन करवाया? स्टीम के साथ। तो स्टीम यहाँ पर है, स्टीम यहाँ पर है, इसका मतलब या तो आंसर ए है या डी, सॉरी ए, आंसर ए है या सी, इसका मतलब बी गलत है और डी गलत है। और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा होगा? क्रैकिंग, क्योंकि एक लॉन्ग चेन को शॉर्ट चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्रैकिंग। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब आप देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पहले से थे, सिर्फ ये दोनों ऐड हुए हैं। तो अगर ये दोनों ऐड हुए हैं तो इसका मतलब मैंने स्टीम ऐड की है, ठीक है। तो एल्कीन रिएक्ट विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। The structure of 4 alcohols are shown. Which statement is correct? Alcohol 1 can be made by the addition of steam to an alkene. Beta, alkene contain double bond between the carbon atom. तो जो अल्कोहल बनेगा उसमें 2 कार्बन एटम होने चाहिए, यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन एटम का अल्कोहल है, which is not possible. ये गलत। अल्कोहल 2 can be made from glucose. Yes, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं तो इथेनॉल मिलता है, C6H12O6। जब हम इसको फर्मेंटेशन में लेके जाएंगे तो ये बनेगा C2H5OH, यानी इथेनॉल, यानी ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड मुझे लगता है कि ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। अल्कोहल 3 इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्कोहल 3 रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, तो इथेनॉल इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अल्कोहल 4 हैज द ओनली 1 आइसोमर। नहीं नहीं, अल्कोहल 4 के तो भाई मैंने 3 आइसोमर्स बनवाए, आपको 4 आइसोमर्स नहीं है, इसके बहुत सारे आइसोमर्स बनवाए मैंने तकरीबन 1 2 3 तो आइसोमर्स बनवाए। तो आप प्लीज नोट्स चेक कीजिएगा, उसमें 3 आइसोमर्स हैं। ये भी गलत, ये भी गलत। इट हैज मोर देन 1 आइसोमर, ठीक है। चेक नोट्स। Oh my goodness, my writing, I'm sorry about that, it's so bad. It has more than 1 isomer, okay. Question 37. Which compounds have the molecular formula C3H6O2? Methyl ethanoate. मिथाइल का मतलब होता है CH3 और इथेनोएट होता है CH3COO। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा CH3COO CH3। इसके बाद है इथाइल। इथाइल होता है CH3CH2। मिथेनोएट होता है HCOO। तो भाई अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा ना तो ये हो जाएगा HCOO CH2CH3। प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। चलो अब हम एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 2 3 कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 + 3 6 हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो 1 2 3 कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 + 2 5 5 + 1 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 कार्बन सेटिस्फाई हो रहे हैं, 3 + 2 5 5 + 1 6 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब तीनों ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, 37D। 38. An organic compound has the empirical formula CH2O. Empirical formula is CH2O, ये याद रखना। Which row shows a possible correct name and structure for this compound? Option A is incorrect because methanol का जो फॉर्मूला है वो ये होता है CH3OH। ये मैंने लिखवाया आपको, इसका मतलब याद होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन सी भी गलत, क्योंकि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है
CH2OH, जबकि उन्होंने मुझे इथेनोइक एसिड दे दिया है, विच इज रॉन्ग। सही है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये मिथेनोइक एसिड है और ये इसका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, ये इथेनोइक एसिड है और ये इसका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, बट आई नीड दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो CH2O, इसका फॉर्मूला है HCOOH, एम्पेरिकल होगा हाफ, तो मैं हाइड्रोजन को हाफ कर सकता हूँ, कार्बन हाफ नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका एम्पेरिकल पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि इसका मोलेकुलर फॉर्मूला है मेरे पास, एक मिनट, इसका फॉर्मूला है मेरे पास CH3COOH। इसका मतलब इसमें टोटल 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा CH2O, जो कि मेरे क्वेश्चन से टैली हो रहा है, and therefore D is going to be the right answer. Okay, that's a tricky question. 39, which statement is correct? ओह, मसला ये है कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पढ़ा है बिकॉज ऑफ द सिलेबस चेंजेस, राइट? लेकिन बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हैं। कैसे अटेम्प्ट करूंगा, जरा गौर से सुनो। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, गौर से सुनो। हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डी से। मैंने प्रोटीन्स पढ़ाए में, तो प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। प्रोटीन्स जो हैं वो नेचुरल पॉलीमर हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। और ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स कहते हैं, प्रोटीन्स को पॉलीसैकेराइड्स नहीं कहते। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलें, उसके बाद वो कह रहे हैं प्रोटीन एंड नायलॉन आर पॉलीमर्स, जो कि बिल्कुल सही बात है। फॉर्म फ्रॉम द सेम मोनोमर। ओहो, प्रोटीन्स, वेट, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, नायलॉन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और डायमाइन से बनता है, और ये दोनों मोनोमर्स डिफरेंट हैं, तो सेम मोनोमर्स तो नहीं होंगे। और फिर वो आगे कह रहे हैं डिफरेंट लिंकेजेस। और भाई दोनों में लिंकेज सेम होता है, सेम लिंकेज होता है। प्रोटीन, मैंने लिखवाया ये आपको, प्रोटीन एंड नायलॉन हैव सेम लिंकेज। और उस लिंकेज का स्ट्रक्चर भी लिखवाया मैंने आपको क्लास में, CONH। नायलॉन में इस लिंकेज को अमाइड कहा जाता है और इसी लिंकेज को प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है, इसलिए सी भी गलत। वो कह रहे हैं फैट्स हैव द सेम अमाइड लिंकेज एज टेरेलिन। भाई टेरेलिन में आपके पास एस्टर लिंकेज होता है, सही है। और अमाइड के अंदर अमाइड का जो लिंकेज है वो नायलॉन में होता है, फैट्स में एस्टर होता है। तो भाई फैट्स में एस्टर लिंकेज होता है, नायलॉन नहीं होता, तो इसका मतलब बी भी गलत। राइट आंसर इज ए। ठीक है, मैंने ए पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं। ठीक है, डी पढ़ाया, सी पढ़ाया, और हमने फैक्ट्स भी नहीं पढ़े बिकॉज ऑफ द सिलेबस कवरेज, बट यहां मैंने क्वेश्चन में बता दिया कि भाई टेरेलिन और फैट्स दोनों में एस्टर लिंकेज होता है, फैट में कभी भी अमाइड लिंकेज नहीं होता। अमाइड लिंकेज नायलॉन और प्रोटीन होता है, सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन गाइस, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने वेरिएंस 11 में किया। द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज शोन। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं अपनी आसानी के लिए। ओके, ठीक है, ये आ गया आपका पॉलीमर। तो पहली तो बात ये है कि जनाब ये आपका एक एडिशन पॉलीमर है, और आप जानते हैं कि एडिशन पॉलीमर इज ऑलवेज फॉर्म्ड थ्रू एल्कीन। और मैंने क्लास में ये कहा था कि पॉलीमर देके मोनोमर पूछ सकता है, तो देखें वो ये कर रहा है कि पॉलीमर देके आपसे मोनोमर पूछ रहा है। वो क्वेश्चन में कह रहा है विच मोनोमर वुड प्रोड्यूस दिस पॉलीमर।
इसलिए मुझे अगर मोनोमर निकालना है तो मैं इस जो ये बॉन्ड है इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी रिमूव कर दीजिए, इसको भी रिमूव कर दीजिए। इन दोनों को रिमूव करने के बाद बिटवीन द कार्बन एटम क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड। अब आप चेक करें कि ये स्ट्रक्चर कहाँ पर अवेलेबल है। ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यहाँ पर अवेलेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि CH3 को ऊपर लिखा था, मैंने नीचे कर दिया, हाइड्रोजन नीचे था ऊपर हो गया। देखो एज लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द सेम कार्बन, आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। as long as it is attached to the same carbon, आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, it doesn't make any difference. So the right answer is going to be an A. Okay, that's the end of this paper. Thank you very much guys, अपना ख्याल रखिए।